24 ଫେବୃଆରୀ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ। ଏହି ଦିନ ଚୁପଚାପ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ। 1 ମାସ ଭିତରେ କରୋଡ଼ପତି ବନିଯିବେ। ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକାଦଶୀ। ଆଉ ଏହି ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପାଇଁ ରଖାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ସହ ଯଦି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା ଏହି ଉପାୟକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ ବନାଇବାରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଚୁପଚାପ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟି। କରୋଡ଼ପତି ବି ଅରବପତି ବନିଯିବେ। ସବୁ ସଙ୍କଟ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟରୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ପିତୃଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତୁରନ୍ତରୁ ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହେଇଯିବ। ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନ, ଧନ, ଭଣ୍ଡାର ଭରି ରହିବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଉପରେ ରାଜ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ସେଭିଂ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜରୀରେ ରଖିଥିବା ଧନ ତାହା କେବେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ, ସଙ୍କଟ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଓ ଖାସ୍ ଜିନିଷଟି ଲୁଚାଇକି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦେବେ ତ ତତ୍କାଳୀନ ଗରିବୀ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଘରେ କେବେ ବି ଅନ୍ନ, ଧନ, ବସ୍ତ୍ରର କମି ରହିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ନ, ଧନର ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଘରେ ଭରିକି ହିଁ ରହିବ। ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗାଈର ଏହି ଉପାୟ କରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଗରିବୀ ଖତମ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଣ ସେହି ଜିନିଷ ଯାହା ଗୋମାତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା ବହୁତ ଖାସ୍ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଯଦି ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିଦେବେ ତ ଗାଈର ଉପାୟ ବତାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ପୂଜା ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜାଣିବା କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଆପଣ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ଏକାଦଶୀ ଆସିଥାଏ। ଫଗୁଣ ମାସର 2025 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପଡୁଥିବା ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ସବୁ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ। ଆଉ ଏହି ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ବହୁତ ହିଁ ଧୁମଧାମରେ ମନାଯାଏ। ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ତଥା ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ଓ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୁରା ବିଧିବିଧାନ ସହ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବି ପୂଜାପାଠ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏହା ଅଟେ କି ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏହା ମନାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବେଦ ପୁରାଣରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଫଗୁଣ ମାସର ବିଜୟା ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ, ଧନଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ସହ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିନ ଏହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ତଥା ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଦିନ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ମହିଳାମାନେ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଓସ୍ତ ଗଛର ପରିକ୍ରମା କରି ତାଙ୍କ ପୂଜା ଓ ବ୍ରତକୁ ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମହିଳାମାନେ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରତ୍ନର ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତାର ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଚାହିଁଥାନ୍ତି ବା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀକୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଖାସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। 24 ଫେବୃଆରୀ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ 52 ତରିକାର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପ୍ରକାଶ ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଯେ କେବେ ବି ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରକାଶମାନ ହୋଇନଥିଲା। 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏହିପରି ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ, ଗ୍ରହ ଯୋଗ, ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ, ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଶୁଭ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି। ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ପୁରା ଦିନ ବ୍ରତ ରଖିବା ଉଚିତ। ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶୋଇକି ଯଦି ଆପଣ ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ଯଦି ଯାଇ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ଦିନର ବ୍ରତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଏମିତିରେ ବି
विजय एकादशी दिन स्नान और दानर विशेष महत्व रही थाए किंतु एही दिन जदि आपण ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र अनुसार गोटे गाई वाला उपाय को पूरा विधि विधान सह करदेवे तो यही उपाय को करने पर साक्षात आपण को श्रीहरि विष्णु और धनर देवी माता लक्ष्मी असीम आशीर्वाद एवं माता लक्ष्मी कृपार आपणकर नवग्रह आपण को साथ देवा स्टार्ट करदेव। आपणकर राहु केतु दशा भल होइजिव कहीं व्यक्तिर जीवनर भाग्य राहु केतुर नियंत्रण श्रीहरि विष्णु हाथ में ही होता है। यही उपाय को करने पर आपण जीवन में धन आसवा स्टार्ट हो आपण जीवन में जो धन आसव ताहा वृद्धि हेब। आपण जीवन में समस्त प्रकार आर्थिक कष्ट मुक्ति मिल जाव कारण माता लक्ष्मी जदि जड़े व्यक्ति को आशीर्वाद करि तो सही व्यक्ति को करोड़पति बनबार ए दुनियार कौन भी शक्ति रोकी पारिबो नाही। एबे आपण माने भाबुथिबे कि गाई को एमिति कौन खाइबा को देबा द्वारा आपण श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्त करिपारिबे। ए पर्यंत जदि आपण माने आमर एही चैनल ले नुआ अछंती तेबे एबे ही आमर एही चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय गोमाता जय श्रीहरि विष्णु जय माता लक्ष्मी निहाती लिखि दियंतु। विजय एकादशी दिन जदि आपण कौनसी भी पवित्र नदी रे स्नान करि परिबे नाही तो आपण कोन करिवे ना घरे ही स्नान करिवे आउ घरे जो स्नान करिवे सेही स्नान जल रे गंगा जल रो किछि बुंदा पकाई स्नान करिवे। आउ एही विजय एकादशी दिन अर्पण पिंड दान कले आपणकर पितृंकर आत्मा शांति पाई थाए एवं आपणकर पूर्वजंकर मोक्ष मिली थाए। एही दिन जदि आपण प्रभु हनुमान और शनिदेव को पूजा करिवे तो आपणकर मंगल दोष जल्दी रु जल्दी दूर हो जाए। व्यक्तिर जीवन रे सुख धन समृद्धि प्राप्त होता है। विजय एकादशी दिन संध्या समय रे ओस्त गछ तले सोरिष तेलर दीप अटार दीपटी बनाई ओस्त गछ तले सोरिष तेलर चारिमुखी दीप जलाई दियंतु किंतु ध्यान देबे सही दीपरे दुईटी फूल थिबा लवंग को पकाई देबे। एहा परे आपण आपणकर मनस्कामना कहिबे तापरे देखिबे किपरि सकारात्मक आपणक जीवन रे हेबो। एबे आसंतु जानिबा गोमाता वाला उपाय। विजय एकादशी दिन आपण गोमाता को पूजा अवश्य करंतु। गोमाता को जो भोग देबे सही भोग दुईटी पूरी देबे आउ सही पूरी ऊपर किछि मिठा किंबा तरकारी किंबा हालुआ रखिके ही खाइबाकू देबे। विजय एकादशी दिन गोमाता को गुड़ जरूर खुआंतु जदि आपणक ऊपर पितृदोष राहु केतु दोष थाए आउ एही दोषरु आपण को जीवन रे संघर्ष बनी जाई थाए तो गाई को प्रतिदिन किंबा कौनसी एकादशी दिन रुटी सह गुड़ चारा खाइबाकू दियंतु आपणकर तुरंत एही दोष दूर हो जाई थाए। गाई को एकादशी दिन 11टी अटा गुला करी सेही अटा गुला रे हळदी लगाई कि गाई को खुआई दियंतु एवं गाईर चरण को स्पर्श करंतु। एमिति करिबा द्वारा समस्त कार्य आपणकर बनिबाकू लागि थाए। आपण जदि एही जया एकादशी दिन तुलसी रे गोटिए खास जिनिस बांधी देबे किंबा आपणकर तुलसी चौरा रे एही गोटिए जिनिस चढ़ाई देबे तो एहा आपणक जीवन रे ढेर सारा सुख समृद्धि नेकी आसी थाए एवं आपणक घरे माता लक्ष्मीकर स्थायी भावे वास होइथाए। आपणक घरे धनर वर्षा हेबो गरीबी सबुदिन पई समाप्त होइजिवो एवं आपणक जीवन रे सबु प्रकारर समृद्धिर प्राप्त होइथाए। तो विजय एकादशी दिन तुलसी रे एही खास जिनिसटी बांधिबाकू जमारू भी भूलिबे नाही। तेबे चालंतु जानिबा कि विजय एकादशी दिन आपणक तुलसी चौरा रे केउ जिनिस बांधिबे तो सबुठो प्रथम जिनिस हेउचे हळदी रंगर धागा। विजय एकादशी दिन तुलसी गछरे हळदिया कलर धागा बा सूताटी बांधि दियंतु। हळदिया रंग समृद्धि और सुख शांतिर प्रतीक माना जाए। एही दिन हळदिया रंगर धागा बांधिबा द्वारा आपणक घरे सुख समृद्धि और खराब नजर आपणको बचाई थाए। द्वितीय जिनिस हेउचे कुंकुम और चाउल। विजय एकादशी दिन तुलसी गछरे कुंकुम और चाउल चढ़ाइले पुण्यर प्राप्ति होइथाए। कुकुम्बर लाल रंग शक्ति प्रेम और पवित्रतार प्रतीक माना जाए। चाउलर महत्व अन्न और समृद्धि सह जड़ित होइथाए।
जेबे आपण तुलसी चौरारे अर्पित करिवे तो एहा आपणक घरे समृद्धि सुख शांति आसीथाय। तृतीय जिनिष हेउची लाल चुनरी आपण चौरारे अर्पित करिवे तो एहा ऊर्जा शक्ति समृद्धिर रंग होइथाय। जेबे आपण माता तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाई थांती तो एहा आपणकु सफलता और आपणक जीवन रे विजयर संकेत देइथाय। एही उपाय विशेष रूप से सही व्यक्ति जो व्यक्ति तांको जीवन रे सफलता प्राप्त करिबा पई चाहि थांती तो लाल चुनरी अवश्य चढ़ांतु। चतुर्थ जिनसटी हेउची कंचा क्षीर। विजय एकादशी दिन कंचा क्षीर चढ़ाइबा विशेष महत्व और पुण्य लाभ होइथाय। कंचा क्षीर भगवान विष्णुकर प्रिय पदार्थ होइथाय। आ तुलसी गछ को कंचा क्षीर चढ़ाइबा द्वारा भगवान विष्णुकर कृपा प्राप्त होइथाय। एही उपाय आपणक घरे समृद्धि और सुख शांति आसीथाय। कंचा क्षीर सह स्वच्छ जल निहाती आपण अर्पण करंतु। एहा अत्यंत शुभ मना जाय। एहा द्वारा घरे आपणकर सकारात्मक ऊर्जार संचार होइथाय एवं सबु समस्या आपणको मुक्ति मिलिथाय। एही उपाय आपणक जीवनर सुख समृद्धि आनिबारे साहाय्य करिथाय। पंचम जिनिसटी हेउची रक्षा सूतक। एहाको तुलसी गछरे बांधिले आपणक घरे सुख शांति और समृद्धिर वास होइथाय। खास करी एही उपाय वैवाहिक जीवन को खुशी रे रखिबा पई करा जाय। जदि आपण चाहते कि आपणकर वैवाहिक जीवन रे सुख सबु बेले बजाय रहू तो एही विजय एकादशी दिन तुलसी गछरे रक्षा सूतक बांधी भगवान विष्णु को सुखी वैवाहिक जीवनर कामना करिवे। रक्षा सूता बांधिबार आउ गोटे मध्य महत्व हेउची एहा आपणक जीवन रे सबु खराब प्रभाव और नकारात्मकता को दूर करिबारे साहाय्य करिथाय। एहा विजय एकादशी दिन विशेष रूप से बांधिबार परंपरा होइथाय। आपण गोटे रक्षा सूतक नेबे सेथिरे 8टी गंठी देबे। गंठी देबा समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मने मने स्मरण करिवे। एहा परे सेही रक्षा सूतक को हळदी रे भलसे गुळेई देबे। एहा परे आपण सेही रक्षा सूतक तुलसी गछरे बांधी देबे। एही उपाय एते चमत्कार होइथाय जदि व्यक्ति कोनोसी मनस्कामना करी एही उपाय को करिथांती तो तांकर समस्त मनस्कामना पूरा होइथाय। एहा महावरदान होइथाय। एही उपाय बहुत चमत्कार उपायटी। आजिर भिडियो रे कुहा जाइथिबा प्रत्येक उपाय गुड को आपण एही विजय एकादशी दिन करंतु। जमार भी हाथ छड़ा करंतु नहीं। आपण को विनम्र प्रार्थना आम चैनल रे जदि आपण माने नुआ अछंती ए पर्यंत हमर एही चैनल को सब्सक्राइब करि नहंती ताहले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो टी गोटे लाइक जरूर करि दियंतु एवं वीडियो टी को अधिक रु अधिक मात्रा रे शेयर करंतु जहा फल रे अन्य माने मध्य एही विजय एकादशी रो लाभ उठाई परिबे।